Hello everyone, good afternoon. ऊपर पटल लो Just wait for the 2 minutes so that other students also going to join. After that, I am going to continue. Now, our morning lecture we had discussed about four variable K-map. Let me revise that one. And in the case of four variable K-map, you have to remember the position like 0, first, second, third, fourth, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, and 15. Okay, so from their position point of view. Similarly, in the four variable, you have to remember like 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, and 1, 1. So this is what we have learned, and you have to start making the pair from the 2 raised to power higher to the lower. And many examples we had studied in our morning session. Now this methodology for the POS is also going to same the same step. There is not a single point change here. Simply you have to remember that in the case of POS you have to make a pair of the 0 rather than 1, and in the case of SOP you have to make a pair of 1 rather than 0. Okay, so let's jump to another part. So just wait for the 2 minutes as just 33 students are there. Uh, Around you can say 30 more students are not there. So please wait for 1 minute, and meanwhile everyone please look at this example and try to analyze how actually all these positions are going to be arranged. Okay, तो सभी पोजीशन कैसे अरेंज की है जस्ट वो आप देखो एक बार तो आपको आइडिया रहेगा. I'm going to explain this thing once all the students are joined. Meanwhile, your task is just to look at this example and try to analyze how actually all the positions, how all the cells are going to be arranged. So let's start with this example. There is one of the things which is new in this example is there is this one B in bracket 2 comma 4. So it's called as don't care condition. It's called as don't care condition. So what is the significance of this condition? One of the most advantage of this technique is you can make a pair depends upon your requirement. In certain combination, like if we look this example, in this one there are three variables are there, so we are unable to make their pair. Okay, but let's assume that if there is one is available at this position, then you can make a pair of this entire four, right? तो जितना आप बड़ा पेयर बनाओगे उतना आपका आंसर वो सिंप्लीफाइड होगा. That much amount of your answer is simplified. So this kind of advantage you can achieve by the don't care. एडवांटेज ये है कि आप अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से उस पोजीशन पे पेयर बना सकते हो. One condition that you have to remember is if there is some benefit, then you have to make pair, otherwise not. Please remember this thing. अगर उधर पेयर बनाने का कुछ फायदा है तो ही हम पेयर बनाएंगे, वरना पेयर बनाएंगे नहीं. Please remember this word. Okay, so this is a regular position that we are equating, like on the position number first, fifth is this one, then the sixth one, this one, then the 12, 13, 14, 12, 13 and 14. Now what about this 2D number? So one is it's mentioned at the position number 2, means at here I have considered that one, and another one is I consider at this position. Okay, so let me ask
one question to hello Parth Tank. Parth, hello Parth, प्लीज अनम्यूट योर माइक। ओके, तो अभी आप देखो बेटा, पोजीशन नंबर सेकंड एंड फोर्थ दो जगह पे हमने एक्स इक्वेट किया है। एक्स इज योर वेरिएबल बिकॉज इन क्वेश्चन इट्स गिवन दैट डी इन कोमा इन ब्रैकेट 2,4, राइट। तो अब हम कौन सी पोजीशन पे एक्स वेरिएबल लेंगे तो उसका बेनिफिट है? पोजीशन नंबर सेकंड पे लेना जरूरी है या पोजीशन नंबर फोर्थ पे? कैन यू प्लीज गिव द आंसर फॉर दैट वन? पोजीशन नंबर 4 पे लेंगे तो वो बेनिफिट है या नहीं है? यस पार्थ, प्लीज अनम्यूट योर माइक एंड गिव द आंसर। सर रिपीट करो तो क्वेश्चन। पोजीशन नंबर सेकंड एंड फोर्थ पे मैंने एक्स वेरिएबल रखा है, ठीक है। मेरा पर्पज ये है कि बड़ी पेयर बनानी है, तो किस जगह पे मैं एक्स वेरिएबल कंसीडर करूंगा तो पेयर बना सकता हूँ बड़ी? सर 0 1 वाળું જે x છે ને 0 1 and 0 0 વાળું। ओके, मीन्स पोजीशन कही हो तो पोजीशन कही? पोजीशन नंबर 4। यस, ओके, पोजीशन 4 पे करूंगा तो क्या बेनिफिट रहेगा? सर तो આખું આપણે જે ઓલો પોઝિશન નંબર 4 5 12 36 ને 4 ની આખી પેર બની જશે। ओके, वेरी गुड। सो पोजीशन नंबर 4 5 12 एंड 30 उसकी पेयर बनाएंगे, ठीक है। तो अभी पोजीशन नंबर 2 पे एक्स है, उसकी रिक्वायरमेंट है कि नहीं है? सर नहीं, वहां पर 0। यस, वेरी गुड पार्थ। देखो, इफ आई कंसीडर द वेरिएबल ऑन द पोजीशन नंबर 4, ये चीज आप ध्यान से समझना। इफ आई कंसीडर द वेरिएबल एट द पोजीशन नंबर 4 तो इस 4 की पेयर बना सकते हैं हम। दिस इज व्हाट द एडवांटेज। लेकिन अगर इधर इफ आई कंसीडर दिस वन, सो इट इज मीनिंगलेस, क्योंकि भी मैंने 2 की पेयर तो बनाई ही है ना। आई कैन मेक अ पेयर ऑफ 2, तो एक्चुअली इस वेरिएबल की जरूरत नहीं है। सो आई कंसीडर दिस पेयर कॉम्बिनेशन एट दिस पोजीशन, लेकिन इस पोजीशन पे मैं कंसीडर करूंगा नहीं। अगेन रिपीट, I'm again repeat all the entire example. Please listen it carefully. In this example, I have considered a don't care condition, and the positions are D in bracket 2,4, right? तो second number की position यानी कि ये वाली है, and fourth number position means this one, right? Condition ये है, जिस पोजीशन पे बेनिफिट रहता है उस पोजीशन में हम एक्स वेरिएबल कंसीडर करेंगे, अदरवाइज कंसीडर करेंगे नहीं। तो अगर मैं पोजीशन नंबर 4 पे पेयर लेता हूं यानी कि ये वाली, तो मेरे को बेनिफिट रहेगा टू मेक अ पेयर फॉर दिस कॉम्बिनेशन। इस 4 की पेयर बनाएंगे तो वो एडवांटेज है मेरा। बट इफ आई कंसीडर दिस राइट साइड पोजीशन, दिस एक्स, इट इज मीनिंगलेस, क्योंकि अभी ये दो की पेयर तो ऑलरेडी बनी है। तो ये थर्ड पोजीशन नंबर 2 वाले को पेयर का बनाने की जरूरत नहीं है। सो जिस पोजीशन पे बेनिफिट रहेगा वो मैं कंसीडर करूंगा, और जिस पोजीशन पे बेनिफिट नहीं है वो मैं कंसीडर नहीं करूंगा। इज दिस क्लियर टू ऑल? सुनील, स्तुति, उमंग, उर्वशी, इज दिस क्लियर? Okay. If any other student have doubt, then please ask me a question also. Okay. तो देखो, इसमें मैंने एक 4 की पेयर बनाई है, तो मैं एक इरेज कर देता हूँ, तो ठीक है। तो ये जो पोजीशन नंबर 2 वाली है पेयर, दैट आई एम नॉट गोइंग टू कंसीडर। तो अभी इफ आई मेक दिस पेयर, ये 4 की पेयर बनाता हूँ तो क्या आंसर मिलेगा? आई कंसीडर दिस 4, जकी अहमद, हेलो जकी। Hello, Zaki Ahmed, are you available? Okay, Vensi Ben Kalaria, are you available? Vensi Ben?
Hello, okay. So Vansi, what is answer? What is answer for this pair? इस पेयर का आंसर क्या होगा? Can you just unmute your mic and give the answer? Vansi Ben, what is common in horizontal? Yes, बोलिए. C days. ओके, हॉरिजॉन्टल है कॉमन. ओके, हॉरिजॉन्टल क्या कॉमन है आपका? 0 1 और इधर 1 1, तो क्या Okay, कॉमन है? B. ओके, तो इधर बी कॉमन है हमारा, ठीक है. और वर्टिकल क्या कॉमन है इस चार पेयर के लिए? C days. ओके, 0 यानी कि सी डैश, राइट, वेरी गुड. तो ये इस चार पेयर का हमारा आंसर है बी सी डैश. वेरी गुड, थैंक यू. सो everyone please remember the answer for this four pair is b c dash, क्योंकि हॉरिजॉन्टल कॉमन है सेकंड डिजिट. सेकंड डिजिट मींस 1, 1 का है b, एंड फ्रॉम द वर्टिकल फर्स्ट 0 इज कॉमन, फर्स्ट 0 यानी कि c dash. So answer for this one is b c dash, right? Okay, so this one. Similarly, if I consider the second pair, let me use another pen for the better understanding. Let me choose another marker. Okay, second pair. Urvisha. Hello. Urvisha, are you available? Urvisha Rayani. Okay, so ये second pair मैंने बनाई है on the position number first and fifth. Position number first and fifth. What is answer for that? Are you able to please unmute your mic? Okay, so B and D dash. Why? Okay, very good. So answer is B and D dash. Okay, so let me check it right now. So your answer is not correct. When your answer is not correct, how you have said it's B D dash? आप एक बार ऐसा वैसा हो तो पॉसिबल है तो अनम्यूट करो अपना माइक. उर्विशा बेन. ओके, उमंग पंड्या. उमंग पंड्या. ओके, उमंग अनम्यूट करो अपना माइक. यस सर. ओके, ये सेकंड पेयर जो मैंने बनाई है पोजीशन नंबर फर्स्ट एंड फिफ्थ का, उसका क्या आंसर होगा? हॉरिजॉन्टल क्या कॉमन है एंड वर्टिकल देखो. हॉरिजॉन्टल क्या कॉमन है? ये पेज, ये दो नंबर देखना, 0 0 एंड 0 1, क्या कॉमन है इसमें से? 0. 0 0 यानी कि क्या होगा? 0 means A. ए नहीं, 0 है. ए या ए डैश? A सर. नहीं ये एसओपी है ना, तो ए 0 यानी कि सॉरी डैश. A dash सर, A dash. ए डैश. ओके, वेरी गुड. अब ये दूसरा है 0 1 अपना, तो 0 1 यानी कि इसका क्या होगा? 0 1 means A dash. नहीं, इधर वाला No, देखो, ये सी डी. C dash D. ओके, सो सी डैश डी, राइट. तो क्या आंसर हुआ? ए डैश A dash C dash D. ए डैश सी डैश C dash D. डी, राइट, वेरी गुड. तो ये देखो मैंने इधर लिखा है. वेरी गुड. ओके, थैंक यू. और फॉर द लास्ट पेयर एज आई मेक दिस सॉ कॉल, उसमें आप देखोगे लाइक हॉरिजॉन्टल कॉमन इज, यू कैन से इसमें से लेना है 0 1 और 1 1. लास्ट डिजिट 1 इज कॉमन, तो इसका कॉमन क्या निकलेगा? सेकंड डिजिट यानी कि बी. बी इज कॉमन. वर्टिकल देखो, वर्टिकल क्या है इधर? 1 0 का. 1 0 मीन्स सी डी डैश. सो इट्स बी सी डैश. ओके, तो इधर एक गलती है इधर. एक्चुअली बी सी D dash, B, C and D dash. That is answer for this one.
Okay. So are you all understood this example? Is there any query? Varun, Vensi, Yash, Shakti, Zenith? Is this clear to all? Okay. Okay, so instead of 2, we can make a pair of 4. Right. Your answer is also correct. Okay, Sunil Budhya, your answer is also correct. So this answer is also we can say right, but better from our exam point of view. Also, we have to make a 4 pair. So you can say Sunil has said the right thing. हम इस दोनों की पेयर और इस दोनों की पेयर भी बना सकते हैं. So this is better answer compared to that one. Okay, so Sunil, very good. Like in this 4 pair, if we consider the last digit is 1, then it is B. And if you look the vertical 0 0 or 1 0, उसमें second digit is common, so second D is 0 represented by the D dash. Okay. So it is D dash. Okay. So Sunil, your answer is correct. Very good. So this is why it's mentioned. So we have to follow this sequence that 2 raised to power higher to the lower. So it is like 16 is possible, then we are making 16. Otherwise, we are making 8. Then after 4. Then after it's 2. And at the end, we are making the pair of the 1. Right? So we have to follow this sequence. So very good. So Sunil, is this clear? Okay. Similarly, let's look at another example. This one. This another example is related to the POS. The second example is related to the POS. Reason is, in this one, I have considered the PIM. This one. Okay. ये हमारा example है POS का, and we have to equate the variable 0 instead of the 1. We are equating the 0 in place of 1. So if we look here, the position number 4 is 0. Let me use a highlighter. Position number 4, I have equated the 0. Similarly, on the position number 7 also I have equated 0. And the position number 10. So position number 10 means on the last line, I have equated the 0. Position number 11 also I have equated 0. Position number 12. Position number 12 means that here I have equated 0, and position number 15. So इधर भी मैंने 0 equate किया. Now on which condition that this variable is given? It is D6, 8. D6, 8. So position number 6. Let me use a pen here. So position number 6 means that here I consider, and position number second is given is 8. एक 6 वाला था, दूसरा है 8 वाला. So on the position number 8 means at this point. My name is available over there, so that's why maybe some problem is there. So, okay. तो मेरा नाम है, उसके ऊपर ही x वेरिएबल है, so you have to consider that one. Okay. So let me ask one question to Kunal Jadia. Kunal. Hello Kunal, are you available? If you say like a wrong answer, then doesn't wrong in that one. कुछ गलत आंसर देते हो तो उसमें कुछ ऐसा है नहीं है, कुछ there is nothing like punishment. So at least give some try it. Better you try rather than unmute. Okay, so Kunal, okay, so in this one, which position we are going to consider? Position number 6 or 8? कौन सी better position है consider करने के लिए? और we have to consider both the position. जो x वेरिएबल की पोजीशन है 6 and 8, वो दोनों कंसीडर करेंगे या एक ही करेंगे या कोई नहीं करेंगे? Kunal, please unmute your mic. Okay, Kunal, don't know.
Okay. So, Mahir Shukla. Hello, Mahir. हेलो महिर। ओके महिर, कौन सी पोजीशन पे एक्स रहेगा तो पैर ज्यादा बना सकेंगे हम? तो एक्स की पोजीशन 6 पे जरूरी है या 8 पे, या कोनो किसी भी पोजीशन पे नहीं? इधर एक्स रहेगा तो पैर बना सकेंगे आप बड़ी। प्लीज अनम्यूट योर माइक एंड गिव द आंसर। None sir means what? We are not consider anyone. अरे अनम्यूट करो ना माइक अपना महिर। हेलो महिर, आर यू एबल टू अनम्यूट? Are you able to unmute, Mahir? Mic is not working, no problem. Milan Gadia, Milan. हेलो यस मिलन। हेलो मिलन, आपकी आवाज नहीं आ रही मिलन। कोई बात नहीं, चलो मैं आंसर देता हूँ इसका। लाइक इन दिस वन पोजीशन नंबर 6 मीन्स दिस वन, तो अगर इधर मैं 6 नंबर की पोजीशन पे लूंगा तो इधर मीनिंगलेस है, क्योंकि इधर कोई नियर बाय जीरो ही नहीं है। So it is meaningless to use a zero in this position. So I will not consider this one. मैं इसको consider नहीं करूँगा। दूसरी, if I consider the x variable on the position number 8, even though it's meaningless, क्योंकि already ऊपर की दो पैर की बनी हुई है, so I am not going to consider this two also. तो मैं किसी भी position पे x variable consider नहीं करूँगा। Okay, so if I consider the zero at over here, if I consider the zero here, then okay, so Missy, hello Missy Nadiani, hello Missy, Nadiadi. If I consider at this position, then what is the answer we get? In this one it's 0 1, then 1 1. The last digit 1 is common, so for that one I can say it's b dash. और दूसरी, अगर आप वर्टिकल देखते हो इधर, so it is c plus d, right? वर्टिकल क्या है? c plus d, so it's b dash plus c plus d, right? This is answer for the first one. Now look at the another position, this one, ये वाली देखते हैं। हमको पैर बनानी है 8 4 2 like that one. तो इधर की पैर हम देखेंगे तो क्या कॉमन है इधर से डायरेक्टली? एक तो वर्टिकल कॉमन है सी डैश प्लस डी डैश। हॉरिजॉन्टल क्या कॉमन है? हॉरिजॉन्टल इस दोनों में से फर्स्ट वन, so it is b dash plus c dash plus d dash, right? सेकंड पोजीशन हमको मिल गई। Now look at the last one, 0 0. Last one is this 0 0. Horizontal क्या कॉमन है? Let me erase all the other point. Okay. If I take this 0 0, horizontal क्या कॉमन है? a dash plus d. And vertical क्या कॉमन निकलेगा? ये दोनों देखो, इसमें से क्या कॉमन निकल जाएगा? कॉमन इज c dash, राइट? आंसर क्या मिला? a dash b प्लस c dash. तो ये जो हमने इधर लिखा है वो वाला। तो ये सभी को समझ में आया? आर यू आर गेटिंग दिस पॉइंट? इज दिस क्लियर टू ऑल? आस्था, दीप, धैर्य, दीक्षा, हर्ष, हर्षित, इज दिस क्लियर टू यू? Should I repeat it again? Is it required to repeat it again?
Jai Kishan, Himangi, Hiren, Janvi. Is this clear? Okay, ठीक है चलो तो majority of you understood this one, so it's good. Like meanwhile, if you anyone have any kind of question, then don't be hesitate to ask me for that. Okay. Now next one is our 5 variable के मैथ. Next हमारा है वो 5 variable के मैथ का है. Okay. So just a minute. Another one more point for you. एक दूसरी चीज है वो मैं आपको करवा देता हूँ अभी. चलिए कंटिन्यू करते हैं. Now in this one it's just 5 variable K-map. So 5 variable K-map कैसे आइडेंटिफाई होता है? So if you look this one, अगर आप ये वाला देखोगे लेफ्ट साइड वाला, it's like a folding of 2 पेज. देखो सीक्वेंस जो थी 0 1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15. ठीक है, उसके बाद का जो नंबर है दैट सेम नंबर वी आर गोइंग टू रिपीट इन द सेम पैटर्न वाइज इट्स सेम. 16 17 18 19 16 17 18 19 20 21 20 to 23. उसके बाद में लास्ट डायरेक्ट लाइन में 24 25 26 27 28 29 30 and 31. So the mechanism of the pair making it remains same. Manner by which we are making the pair, it remain as it is. There is nothing in the making pair. And how many variables are there in the 5 variable? It is like 32. For the case of 4 variable, it's 16. But for the case of 5 variable, here one consider the 5 word here. It is 2 raised to 5 means 32 combinations are going to be available. 32 combinations are there. ठीक है. चलिए एक एग्जांपल देखते हैं. दिस इज अ सिमिलर एग्जांपल. लाइक हमने अप्रोप्रिएट जगह पे 1 इक्वेट किया है एंड 0 रेस्ट ऑफ पोजीशंस आर देयर. सो वी आर मेकिंग अ पेयर इन दिस वन. ओके, एक थोड़ा डिफिकल्ट एग्जांपल करवाता हूँ आपको. इट्स दिस वन इज सिंपलर वन. नाउ इन दिस वन just look at this example only. Okay, don't look at the other part of this one.
Okay. So in this example, let's consider the position. As I have mentioned here, this is just a 5 variable table. The methodology is remain same, कुछ गलत नहीं है. Now on the position number 0, 2, 4, 8, as per this previous table, इस टेबल के हिसाब से मैंने वैल्यू अलग अलग इक्वेट किया. I have equate in this one, okay? So don't worry about this pair pattern क्योंकि हमने काफी बार एग्जांपल के प्रैक्टिस भी किया है ये. अभी मेन चीज हमको पैटर्न कैसे बनाना है. How we have to make this pattern, how we have to make this pair combination. So let me use a one marker here. Let me choose a pen here. तो देखो इसमें क्या पॉसिबल हो सकता है. ये 4 की जो पेयर बनेगी, वैसा वर्षा, this pair is also common, right? If you consider a paper, अगर आप पेपर लेते हो जो सेंटर में से फोल्ड है, तो सेंटर पोजीशन ये वाली में से फोल्ड है, अब क्या कह सकते हो, दिस टू आर मिरर इमेज, राइट? पोजीशन विच इज मेंशन इन दिस वन, ये जो 4 1 है, सेम पैटर्न इज रिपीटेड हियर, क्योंकि ये टेबल है हमारा, इट्स लाइक दिस वन. ऐसा है, हम एक सिंगल पेज को भी फोल्ड कर सकते हो, एंड वी ऑल्सो एबल टू आइडेंटिफाई द अदर वेरिएबल ऑल्सो. तो इसमें जैसे ये 4 की पोजीशन है, अगर ऐसी ही पोजीशन इस 4 पे आती है, सो वी कैन से इट्स मिरर इमेज. सो सेम इधर आ रहा है, राइट? सो दिस इज व्हाट वी आर एबल टू मेक अ पेयर. इज दिस क्लियर टू ऑल? ये सबसे पहले सभी को क्लियर हुआ कैसे सभी को पेयर बनानी है? भाविक, चिन्मय, इज दिस क्लियर? दीप, आस्था, आकांक्षा, इज दिस क्लियर? क्लियर नहीं है तो बोलो, मैं वापस रिपीट करवाता हूँ. देखो मैं एक बार वापस रिपीट करता हूँ. प्लीज एवरीवन, प्लीज फोकस इट केयरफुली. दिस एग्जाम्पल इज रिलेटेड टू द 5 वेरिएबल. ये 5 वेरिएबल का है. सो द नंबर ऑफ कॉम्बिनेशंस अवेलेबल आर 32. सो इट्स लाइक अ फोल्डिंग ऑफ पेपर. तो ये इधर अगर सेंटर से मैं फोल्ड करता हूँ किसी पेपर को, सो व्हाटएवर द वेरिएबल्स अवेलेबल ऑन द लेफ्ट साइड, सिमिलरली आई कैन मेक आइडेंटिफाई ऑन द राइट साइड ऑल्सो. तो मान के चलो इस 4 पोजीशन पे वेरिएबल अवेलेबल है. अगर सेम वेरिएबल इस 4 पोजीशन पे आएगा, सो दैट यू कैन से इट सेम, राइट? अगर मैं एक दूसरी चीज ड्रॉ करता हूँ, जैसे कि मान के चलो ये कॉर्नर की पोजीशन पे 1 है, कॉर्नर पे. अगर वही 1 इस पोजीशन पे आएगा, सेंटर लास्ट वन पे, सो वी कैन से इट्स आल्सो मिरर, राइट? क्योंकि ये पेपर है, सिंपल. आप पेपर फोल्ड करके आइडिया करो अपने दिमाग में, हाउ वी आर गोइंग टू कंसीडर दैट. वही चीज इधर हो रही है. इसमें आफ्टर पुटिंग अ वैल्यू ऑफ 1 in this one, we have identified this is one variable. दूसरी पोजीशन इसमें इधर ऐसे है. So this represents that values are same from with respect to the center position. यहाँ तक सभी को समझ में आया? धैर्य, दीप, ध्वनि, दीक्षा, फोरम, हर्ष, is this clear to you? सिंपल एक मिरर इमेज है ना, वो देखो आप विथ रिस्पेक्ट टू सेंटर लाइन. तो इस 4 की पेयर के क्या आंसर मिलेगा हमको? व्हाट इज द आंसर फॉर दिस 4 पेयर? जानवी बेन, जानवी पटेल, ओके. जानवी, व्हाट इज आंसर फॉर दिस 2 बॉक्स? हॉरिजॉन्टल क्या कॉमन निकलता है, वर्टिकल क्या कॉमन निकलता है?
ये जो दो बॉक्स बनाए हमने 1 1 के, इन दैट वन व्हाट इज कॉमन फ्रॉम हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल? ओके, सो हॉरिजॉन्टल कॉमन इज जस्ट 1, राइट? तो 1 है तो बी डैश क्यों लिखा आपने? ओके, यू हैव रिटन बी. ओके, सो मिलन हैज रिटन बी. ओके, सो देखो मैं बोलता हूँ इधर सिंपली ये देखो अच्छे से. फ्रॉम द हॉरिजॉन्टल कॉमन हम इस दोनों को देखना है. इसमें से क्या कॉमन है? सेकंड 1 इज कॉमन, राइट? इसमें से ये कॉमन है. और वर्टिकल देखो तो वर्टिकल यानी कि ये दोनों और ये दोनों, इसमें से क्या कॉमन है? कौन सा डिजिट? इसमें 0 1. ओके, तो 0 0 भी हो सकता है, सेंटर वाला नहीं होगा. अभी इसमें से क्या होगा कॉमन? लास्ट 1, राइट? जो ये दोनों पेयर आपको देंगे, एक ये दोनों देखते हैं तो आप देखोगे जस्ट लास्ट 1 इज कॉमन. लेट मी जस्ट इरेज वन मोर टाइम. लेट मी यूज हाईलाइटर. तो ये देखो लास्ट 1 है ना, वो चारों में कॉमन है. जस्ट लास्ट 1 इज कॉमन. दूसरे तीनों डिजिट अलग अलग है. सो वी कैन नॉट से इट्स कॉमन. सिमिलरली इसमें से क्या कॉमन है? फर्स्ट सेकंड 1 इज कॉमन. दैट्स व्हाई वी आर गेटिंग द आंसर फॉर दैट वन इज बी इनटू ई. ओके, वेरी गुड. सो इज दिस क्लियर टू ऑल अदर स्टूडेंट्स? इज दिस क्लियर? निराली, नैन्सी, मोहिब हुसैन, सिंपली आपको कॉमन देखना है, दूसरा कुछ नहीं. ओके, तो मैं इसको इरेज कर देता हूँ. नाउ व्हाट इज नेक्स्ट कॉम्बिनेशन इज देयर? नेक्स्ट कुछ कौन सा पॉसिबल? देखो ये 1 मैंने पेपर फोल्ड किया, याद करो मैंने पेपर फोल्ड किया है सेंटर से, सेंटर पोजीशन से फोल्ड है. ये 1 और ये 1. दिस 4 आर ऑल्सो गोइंग टू बी कॉमन. तो इस 4 में कॉमन कैसे मालूम पड़ेगा? सो जस्ट हॉरिजॉन्टल लाइन 1 लाइन मीन 0 0. वर्टिकल से ये 0 0 ये 0 1 0, ये 1 1 0 और ये 1 0 0. तो इसमें से क्या कॉमन निकल सकता है? व्हाट इज कॉमन अवेलेबल हियर? ये तो दोनों आएंगे 0 0. अभी ऐसे वर्टिकल देखें अगर हम, सो लास्ट 0 इज कॉमन. जस्ट लुक दिस वन. लास्ट 0 डिजिट इसमें से और इसमें से ये कॉमन है. दूसरा कुछ भी चीज चारों में कॉमन नहीं है. सो व्हाट वी कैन राइट डाउन फॉर दैट वन? वी कैन से इट इज ए डैश बी डैश एंड लास्ट डिजिट मीन्स 0. तो ऊपर से देखोगे यानी कि ई डैश. तो ए डैश बी डैश एंड ई डैश इज कॉमन फ्रॉम दिस वन. ए डैश बी डैश एंड ई डैश इज common from this. Okay. So is this clear to all how I have made this pair? Stuti, Shyam, Shreya, Selvi, Sarhad, Vaibhav, Varun, Vensi, is this clear? How I get A dash, B dash, C dash? किसी को कुछ भी डाउट है तो बोलना मेरे को. डोंट बी हेजिटेट. लेट मी इरेज दिस ऑल पॉइंट्स अगेन. ओके, नाउ व्हिच वन इज रिमेनिंग? रिमेनिंग इज दिस वन एंड दिस वन. ये वन रिमेनिंग है, ठीक है. सो व्हाट आई एम डूइंग हियर फॉर दैट वन मैं ये इस दोनों की पेयर बनाता हूँ. इधर तो मिरर है सेंटर में और इस दोनों की. So that our pair can become a broader one. आप बोलोगे सर ये येलो हाईलाइट है, उस दोनों की पेयर बनाऊं तो? यस, यू कैन मेक इट पेयर बट द आंसर इज नॉट टू मच सिंप्लीफाइड. आंसर उतना सिंप्लीफाइड आपको मिलेगा नहीं. दैट्स व्हाई ऑलवेज ट्राई टू प्रिपेयर अ पेयर विच वन इज ब्रोडर. तो अगर आप ऐसी पेयर नहीं बनाओगे तो जो आंसर मिलेगा दैट इज नॉट प्रॉपर वन बिकॉज वी हैव टू सिंप्लीफाई. क्या करना है? सिंप्लीफाई करना है. तो आपका जो आंसर सिंप्लीफाई नहीं होगा तो आपको प्रॉपरली कंप्लीट मार्क्स नहीं मिलेंगे.
तो इन दिस वन अगर मैं देखूंगा तो इस 1 1 and 1 0, फर्स्ट वन इज कॉमन, फर्स्ट वन इज कॉमन, सो फर्स्ट वन इज कॉमन मीन्स एडीएस। और उसके बाद ये दोनों देखते हैं वर्टिकल 0 0 1 and 1 0 1, तो उसमें से क्या है, लास्ट 0 1 इज कॉमन, 0 1 0 1 यानी कि डी डैश, लास्ट वन यानी कि ई, तो क्या मिला ए डैश डी डैश, सॉरी इधर वन है ना, तो सॉरी ए ही आएगा, ए इज ओनली I am getting, that's why at here I get the A D dash and E. A D dash and E. Simply this kind of examples are there related to the 3 variable, related to the 5 variable. Okay, so let's solve one more example. Okay, so in the case of this example, is this example related to SOP or POS? Whether this example is related to SOP or POS? Yes, very good. So this example is related to POS because it here it's a pi m. Okay, तो हम पेयर भी बनाएंगे जीरो की. We are able to write down a pair of zero. Based upon this question, I have equated the variable 0 in the appropriate position. There is not any other points I have changed. So after putting the different variable 0, मैं देखता हूँ इधर तो एक ये 0 की पेयर बनती है बड़ी वाली. इसमें मैंने बोला था जब भी कुछ बड़ी पेयर बनती है एक साइड का कुछ कॉमन नहीं होता है. इधर हम देखेंगे कि लाइक 1 1 0 and 1 1 1. तो इसमें से हमको क्या आंसर मिला? Which one is common? First two ones are common. So 1 is represented by C dash plus POS है ना, तो प्लस होगा, it is D dash. ये वाला मेरे को इधर मिला C dash plus D dash, right? दूसरी चीज, let me identify, is there any other pair is possible? दूसरी कुछ पेयर पॉसिबल है कि नहीं? चलिए मैं देखते हैं. यस, इन दिस वन दिस 4 पेयर्स आर पॉसिबल. इस 4 पेयर का क्या होगा आंसर? हॉरिजॉन्टल देखे तो 0 0, वर्टिकल देखे तो ये जो रिमेनिंग टास्क, फर्स्ट वन फ्रॉम दिस वन, the first one is common, फर्स्ट वन. तो इस वन का आंसर मिलेगा इसके बेस पे C डैश, और इस 0 0 का आंसर मिलेगा इस A प्लस B. ठीक है, क्योंकि POS है. तो क्या मिला? A प्लस B प्लस C डैश. तो ये वाला A प्लस B प्लस C डैश. ये लास्ट कौन सी पेयर बची? लेट मी चेक, लाइक दिस 2 0 फ्रॉम दिस साइड एंड अनदर 2 0 फ्रॉम दिस साइड, राइट? हॉरिजॉन्टल क्या है? हॉरिजॉन्टल 1 1 1 1 मीन्स A डैश प्लस B डैश प्लस वर्टिकल क्या कॉमन है? वर्टिकल ये 2 0 और ये वाला, इसमें से क्या कॉमन है? इफ यू चेक इट आउट, जस्ट यू कैन से फर्स्ट टू 0 0. ओके, सेंटर 0 इज कॉमन, सेंटर वाला 0 यानी कि D. क्या मिला? A डैश B डैश प्लस D. And in the last, these 2 0 0s are there. ठीक है, तो उसका आंसर होता है A. हॉरिजॉन्टल A है कॉमन, फर्स्ट डिजिट इज कॉमन. वर्टिकल देखेंगे हम
001 यानी कि सी, दूसरे जीरो का डी, लास्ट वन यानी कि yes. So A, C, D, and E dash. This is last answer for this one. So this is how we are trying to occupy all the zeros in this example, as this is belongs to the POS. So is this clear to one? किसी स्टूडेंट को कुछ डाउट है तो बोलिए. अवध, अवध, आकांक्षा, आस्था, भाविक, चिन्मय. कमलराज, जय किशन. Okay. Right here we have considered the different examples related to the K-map, Karnath map, and we had learned that how actually we can simplify the equation. एक चीज आप लोग याद रखो, हमको बने उतना पेड़ लार्जर टू स्मॉलर मैनर में जाना है. We are trying to moving from the larger to the smaller. Okay. So next topic is a little bit different, and it's lengthy topic. So I'm going to start the next topic in our upcoming lecture. So in this one, I keep up to this point only. Meanwhile, everyone write down a summary in the chat box. कुछ question है तो बोलिए मेरे को. Otherwise, you may leave. If you have any kind of question, then ask me. If you have any kind of question, anyone have any kind of question, then ask me. If anyone have any kind of question, then ask me. Please write down summary in the chat box quick. Astha, Bhavik, Chinmay, Dhैर्य.
Terry, Kunal, Mishi, Ruti, Asthaben, write it down, the summary. After writing the summary, you may leave. Asthaben, Mishi. Okay, so you may leave. Mishi Ben, Mishi Bhai, or whatever. Ruti, have you written? I can't write. Okay, so you inform Missy for that. आप मिसी को बोलो. मिसी, hello मिशी नडियादी. You write down her number. रुति का नंबर लिखो. 190 190 570 570 11 11 6036. और are you billing to CE or IT? मिशी, रुति. IT. Okay, so IT 36 भी लिख देना. मिशी. Okay. हाँ ठीक Thank you. Okay, thank you.